नमस्कार। आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सकुशल होंगे। सो स्टूडेंट्स, एज वी इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव टॉक अबाउट द Arabic respiration, especially about the TCA or the Krebs cycle, right? In which we have understand how the pyruvate can be changed and how the ATP energy can be synthesized with the help of the this pyruvate. Means अभी तक हमने केवल ग्लूकोज से जो ATP का सिंथेसाइज होता है उसको पढ़ा. After that we have to know how this process will take place in the mitochondria and where it will take place. We have to know about the, especially about that FADH2 or NADH ions, how they can synthesize the such structures, right? So for that we have to know the another thing that is called the electron transport system or the oxidative phosphorylation. Even I have explained this oxidative phosphorylation previous one. But we also know about this electron transport system or ETS, electron transport of chain. Evenly at the end of the Krebs cycle, means after the completion of that Krebs cycle, the oxidation of glucose is completed and it can be given to 6 carbon dioxide molecule. But in that particular condition, the energy is also very less. Means we can say that is 2 ATP in each glycolysis Krebs cycle. So due to which we can say after that the full amount of the energy is yet to be obtained from the substrate and the glucose. Means generally जो ग्लूकोज सबस्ट्रेट लेवल पे जो हमारा फॉस्फोराइजेशन होता है उसमें हमारी एनर्जी निकलती है, लेकिन इन ड्यू टू दैट कंडीशंस वी कैन से स्पेशली इन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेप्स द रेस्पिरेटरी process can utilize the energy which can be always stored in the NADH and the FADH2. So indirectly we can say electron transport system, it is a metabolic pathways through which the electron passes from one carrier to another and it occurs in the inner mitochondrial membrane. Means generally अगर हम सिंपल सी बात करते हैं, ठीक, तो हमें ये पता रहना चाहिए स्पेशली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो मेटाबॉलिक पाथवेज है, यानी मेटाबॉलिक पाथवेज भी कह सकते हैं, एम्फीबॉलिक पाथवेज भी कह सकते हैं, जिसमें सिंथेसाइज होना भी और ब्रेक डाउन होना दोनों प्रोसेस कंटिन्यू रहती है, जिसको हम लेटर ऑन वी विल टॉक अबाउट द एम्फीबॉलिक पाथवेज ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस. लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि जनरली जो ETS है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग चेन है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इट कैन बी ऑलवेज अकर इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. मीन्स जनरली एज वी talk about that, suppose you can see in this diagram, you can see this is the inner membrane which is can represent with the help of blue color over there. So instead of that this is a matrix, right, where Krebs cycle will take place and this is the interspaces. Interspaces means generally intermass कह सकते हैं. यहाँ पर हमारी अगर होगी तो ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया होगी, ये इंटरस्पेस हो गई, और ये हमारा पास ये इंटरस्पेस हो गई, और ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन हो गया, और ये हमारा मैट्रिक्स हो गया. सो सच स्ट्रक्चर्स कैन बी स्पेशली सो इन द कंडीशंस. सो वी हैव टू नोन दैट हाउ द दिस कैन बी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ओवर देयर. मीन्स वी कैन स्पेशली से विद द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस थ्रू विच द कैरियर ऑफ द अनदर दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, राइट, स्पेशली इन दैट पर्टिकुलर कंडीशंस. It can be always, as I told you, in the inner membrane of mitochondria, and generally this ETS can comprises special steps. इसके लिए हमें पता रहना चाहिए it will take place especially in the complex first, right, second, third, fourth and fifth. ये हमें ध्यान रखना चाहिए. लेकिन जो स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर्स में, अगर हम सिंपली बनाएंगे तो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अनदर थिंग्स. स्पेशली स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर होगा या जो साइकिल होगी उसके बेसिस पे तो चेंज होगा, लेकिन स्पेशली इट विल ऑलवेज इन द कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, देन कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड देन कॉम्प्लेक्स फोर्थ, एंड आफ्टर दैट द ATP कैन बी सिंथेसाइज्ड इन दैट पर्टिकुलर कंडीशंस. और वी कैन से दैट दिस NADH2 और FADH2 कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय द डिफरेंट एंजाइम्स. स्पेशली इन NADH we can say NADH dehydrogenase enzyme can be formed over there. In the complex second there is a succinate dehydrogenase, means जहाँ पर हमारा जो सक्सेनिक एसिड है उससे जब फॉर्मेट एसिड बनता है, फॉर्मेट बनाते समय वेर एवर द FADH2 कैन बी रिलीजेज ओवर देयर. After that there is a cytochrome complexes can be found over there, they can be supplies the cytochrome BNC. Evenly after that they can be in the complex fourth,
the cytochromes A2A3 can be formed. After that, energy can be formed. So let's start to how the such process can be take place. So we can shown that electron transport can be have these four complexes as I have told you. Complex first, second, third, and fourth one. Right. So if we talk about the especially complex first, the electron from the NADH produced in the citric acid cycle oxidized by the NADH hydrogenase enzyme, and they can be transferred to the ubiquinone located within inner membrane of the mitochondria. वो क्या होते हैं, जब NADH के जो हाइड्रोजन आपके आयंस होते हैं, दे शुड बी ट्रांसपोर्टेड, क्योंकि जब तक वो ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे तो तब तक क्या होगा, हमारा ऑक्सीजनेशन नहीं होगा। तो ये हमारे हाइड्रोजन आयंस निकालने के लिए इनर मेम्ब्रेन से, ठीक, ये प्रोसेस रहती है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के अंदर, जो आपके यूबिक्विनोन में जाएगी। आफ्टर दैट वी कैन से द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स आर टू बी रिसीव्ड बाय द यूनिक्विनोल, जो आपको रिड्यूस होने हैं, यानी कि FADH2 जो होता है वो कॉम्प्लेक्स सेकेंड में क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि उसमें फॉर्मेट सक्सीनेट, जो आपका सक्सीनेट हाइड्रोजनेस प्रोसेस आएगी, जिसमें से भी हाइड्रोजन एंजाइम निकालेंगे, विच कैन कैपेबल टू जनरेट ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ द सक्सीनेट, यानी कि जब हमारा ऑक्सीडेशन होता है सिट्रिक एसिड का, राइट, साइकिल में, तो सक्सीनेट की मदद से तब जाके आपका फॉर्म FADH2 बनेगा। एंड आफ्टर दैट दिस कैन बी एबल टू रिड्यूस इन द यूबिक्विनोन, और समटाइम्स इज आल्सो नोन यूबिक्विनोन, in that oxidized with the help of electron transfer of the cytochrome C, right? Of this cytochrome C means we can say that generally the small protein attached to the outer surface of the inner membrane. ये ध्यान रखना कि स्पेशली जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेकेंड है ये हमारा इनर मेम्ब्रेन के सरफेस पे अटैच रहता है, बाकी तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर रहते हैं, राइट। तो आफ्टर दैट द कॉम्प्लेक्स थर्ड which can have the cytochrome C, which can be always acts as a mobile carrier to the transfer of electron between the complex second and fourth. मीन्स जनरली जो साइटोक्रोम सेकेंड होता है इसके जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं डायरेक्टली सप्लाई नहीं हो पाते, और डायरेक्टली सप्लाई नहीं होने की वजह से इट कैन बी कैपेबल टू सप्लाई दोज इलेक्ट्रॉन टू दी साइटोक्रोम थर्ड, and from where they can be transported these electrons to the cytochrome or the complex fourth. We can say the complex fourth, which can be, we can say the cytochrome C, which can be oxidized, and they can capable to complex contain cytochrome A to A3, and after that they can be changes over there. So during this whole process, we can say during the this whole process transfer, when the electrons passes from the carrier molecule to the another, we can say directly from the complex first to complex fourth, in the electron trans चेन नीडेड, मीन्स इन हाइड्रोजन आयन को निकालने के लिए बिना इलेक्ट्रॉन के ये इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। फॉर दैट वी हैव टू नीडेड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड ड्यू टू विच वी कैन से दे कैन गेट कपल टू द ATP सिंथेसिस एंड इन द कॉम्प्लेक्स फिफ्थ वन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP फ्रॉम द ADP, क्योंकि जब यहाँ पर हमारा ऑक्सीडाइजेशन होगा उस समय जो ATP का सिंथेसाइज होगा वो किससे होगा, ADP के मदद से होता है। whenever there is one more inorganic phosphate can be added over there, so the number of ATP molecules synthesized depend on the nature of the electron. For that we have also known that one molecule of NADH on the oxidation it can capable to provide the 3 molecule of the ATP, and the one molecule of FADH can be oxidized, it can capable to provide the 2 molecule of ATP, because generally in that particular condition we can say the redox potential is higher than the NADH, right, especially the FADH2. So we can say whenever the enters into the ETS after the passing of the first site of the phosphorylations, and we can say the electrons are finally accepted by the oxygen and having the higher redox potential in the series, which can along with H ions forms water. At last you can see, especially in this also, it can be capable to synthesize the water in the last over here, you can just see over there, right. So this way we can say, especially in the aerobic conditions, right, especially in the aerobic conditions you must know that how this process can be take place, especially in that particular conditions. So later on we can say
generally the aerobic process or respiration take place only in the presence of oxygen, and the oxygen can is also a limited at the terminal stages for such process. So we can say the presence of the oxygen is vital because it is drive whole process by the removing hydrogen from the system. Generally अगर मान लीजिए एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो सकती, और अगर हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव नहीं होगी तो वहाँ पर हमारा एटीपी का फॉर्मेशन भी नहीं हो सकता है. तो दिस इज वेरी नेसेसरी प्रोसेस ओवर देयर. फिर इसके बाद एक बात और आती है कि जनरली एटीपी जो सिंथेसिस हो रहा है ये हो कैसे रहा है, किस पर्टिकुलर प्लेस पे हो रहा है. तो उसके लिए हमें पता रहना चाहिए स्पेशली जो हमारा कॉम्प्लेक्स फिफ्थ होता है, राइट, जिसमें हमारे हाइड्रोजन आयन डायरेक्टली अटैच करेंगे, राइट. अगर हम मान लेते हैं स्पेशली इन दैट पर्टिकुलर कंडीशंस, right, so we can say the oxidative phosphorylation is the mitochondria catalyzed by the multi-completed enzymatic complex. Especially we can say that is enzyme is called the ATP synthase or coupling factors. So these coupling factors are generally there are two. Their number one is F1 particles and F0 particles. If we tend to talk about the F1 particles, as you can see especially in the diagram, these are F1 and these are F01. Right. So in that particular condition we can say then F1 particles, it is the head piece of the peripheral membrane of protein complex and contains the site of ATP synthesis. ये कहाँ पे होता है, हेड पोर्शन पर होता है जहाँ पे हमारा ATP का सिंथेसिस होता है with the help of the ADP, right, with the attachment of the one ionic phosphate over there. जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि स्पेशली ATP में एक ionic phosphate जुड़ा है जिसकी वजह से हमारा ATP मॉलिक्यूल बन गया. ये दिस इज द इनर पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. बट व्हाट अबाउट द आउटर पार्ट जहाँ से हाइड्रोजन आयंस एंटर करेंगे, राइट. सो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशंस वी कैन से दैट F0 ऑफ द नॉट कंडीशंस ओवर देयर. सो वी कैन से इट इज एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जो हमारा F0 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, दैट विच कैन कैपेबल टू फॉर्म द स्पेशल चैनल थ्रू विच द प्रोटॉन्स क्रॉस थ्रू द मेम्ब्रेन, जहाँ से हमारे जो प्रोटॉन होंगे वो क्या होंगे, क्रॉस होंगे यहाँ से यहाँ को, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, दैट इज F0 पार्टिकल्स कहलाएगी. सो वी कैन से स्पेशली इन दैट पर्टिकुलर द पासेज ऑफ प्रोटॉन थ्रू द चैनल इज कपल्ड, दो बार होगा, राइट, टू द कैटलिस्ट साइट ऑफ द F1 एंड कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ATP. यानी कि दोनों पार्ट जब यहाँ पर चूँकि दो बार हमारा जो प्रोटॉन पास होगा तो जिसकी वजह से वी कैन से that in that particular conditions in this coupling position we can say for the every 2H ions that can pass through the F0 from the intermembrane space to the matrix down to the electrical product gradient, one ATP molecule is produced over there. तो जितने बार ये 2H यहाँ से पास होकर आएंगे उतने बार हमारे पास उतने ATP का सिंथेसिस होता रहेगा. इस तरीके से हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी सच इलेक्ट्रॉन्स है वो आ जाता है. सो स्टूडेंट्स, द इफ वी टॉक अबाउट द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, आई थिंक इफ यू रिमेंबर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू अबाउट दिस रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट. मैंने आपको जब क्रेब्स साइकिल समझाई थी बेटा, उस क्रेब्स साइकिल में ही आई हैव एक्सप्लेन यू स्पेशली अबाउट दिस वन, राइट, इन विच आई हैव जनरली एक्सप्लेन यू दैट द टू molecule of ATP which can be directly synthesized during the molecular substrate level of the phosphorylations. After that before the pyruvic acid can form, in that particular two molecule of NADH can be released over there. So those NADH can be capable to synthesize the 6 ATP, because as I have told you, one NADP can be oxidized, it can be capable to synthesize 3 ATP. Then there is a two molecules of the pyruvic acid can be formed over there. तो टू मॉलिक्यूल बनेंगे तो वहाँ से फिर से हमारे क्या बन जाएंगे 6 ATP. तो जब वहाँ से जब pyruvic acid का एसिटाइलाइजेशन होगा, वेयर वी विल गेट द एसिटाइल कोएंजाइम A, उस समय भी हमारे 2 NADH निकलेंगे जिससे हमें 6 ATP बनेंगे. उसके बाद आफ्टर द सिट्रिक एसिड साइकिल, तो वहाँ पर फिर से 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADH कैन बी सिंथेसाइज ओवर देयर. तो 6 से हमारे 18 ATP बनेंगे और आफ्टर दैट 2
molecule of FADH which can capable to 4 ATP and the 2 molecule of GTP can be formed 2 molecule of ATP. So in the total net gain of the ATP during the such process we can say there is 38 ATP molecule can be synthesized over there, especially in the condition of the aerobic respiration. Or directly we can say generally in the eukaryotic cells the 2 molecule of ATP are spent for the transporting 2 molecules of NADP form, right. जनरली जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उन यूकैरियोटिक सेल्स में स्पेशली 2 मोलिक्यूल ऑफ एटीपी जो होते हैं कैन बी कंज्यूम्ड फॉर द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द 2 मोलिक्यूल ऑफ NADH फॉर्म ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशली टू द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. हेंस वी कैन से टोटल द नेट गेन ऑफ मोलिक्यूल्स दैट इज 36 ATP. तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना, एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP बनते हैं, लेकिन 2 ATP एनर्जी कंजप्शन जो होता है जब हमारा NADH कैन बी ट्रांसपोर्ट टू दी माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि हमें पता है जो क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी तो मैक्सिमम सेंसिटाइजेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है. तो जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ दी NADH को अंदर सप्लाई करने के लिए एक खर्च हो जाता है, इसलिए टोटल नेट गेन जो होता है हमारा वो होता है 38 ATP molecule can be synthesized in that particular condition. So students don't be hesitate, don't be confused over there. आप लोग देख भी रहे हैं, जैसा कि सिंपल समझने की कोशिश कीजिएगा. इस डायग्राम में यहाँ पर आपकी जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये मैट्रिक्स हो गया. तो आप ध्यान से ये जो क्रेब्स साइकिल में हमारा NADH बना, ठीक, तो उसको जैसे ही हमारा इनर मेम्ब्रेन में सप्लाई करना था तो जिसकी वजह से हमारे हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे, ठीक, तो उस हाइड्रोजन आयन निकालने के लिए वी हैव टू नीड द कॉम्प्लेक्स फर्स्ट दैट इज FNN, राइट. तो इस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में जैसे इसको हमने सप्लाई किया तो सप्लाई करते समय NADH था, इट कैन बी कैपेबल टू ब्रेक डाउन. NADP क्या हुआ, वो NADH ब्रेक डाउन करके ये हाइड्रोजन आयंस क्या होंगे हमारे यहाँ हाइड्रोजन के रूप में निकलेंगे. तो ये क्या होगा, इसको ब्रेक करके जब इधर ले जाएंगे तो दे कैन नॉट डायरेक्टली ये हाइड्रोजन पास नहीं हो सकता, सो दे ऑल्सो नीडेड द इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंज्यूम करके हाइड्रोजन को रिलीज करा के यहाँ पे पहुँचा देंगे, राइट. ये प्रोसेस कंटिन्यूसली कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में, फिर कॉम्प्लेक्स सेकंड में, फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड में, फिर कॉम्प्लेक्स 4 में ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है. अगर हम डायरेक्टली कहें कि हाइड्रोजन आयन सीधे सीधे चले जाएंगे तो नहीं जा सकते, इसके लिए वी हैव टू नीडेड द सम इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी कैपेबल टू एब्जॉर्ब देम, आफ्टर दैट दे कैन रिलीज इनटू द that particular places. So this process can be done especially in that particular conditions. So I think everybody have understand to how this transport chain can be take place in the table. Later if you still have any problem I will explain later. लेकिन बेटा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ये प्रोसेस है तो हम कह सकते हैं to produce the ATP by using the ETS, राइट, विद द हेल्प ऑफ फिलिंग ऑफ हाइड्रोजन्स एंड हाइड्रोजन्स. जो बार बार आपके हाइड्रोजन जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बनेंगे उसको ही हमारा इसमें ट्रांसफर कराने की मेन प्रोसेस कराती है. और आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि ATS इज नथिंग, इट इज़ जस्ट टू फॉर्मेशन ऑफ ATP विद द हेल्प ऑफ NADH एंड FADH2. जो हमारे क्रेब साइकिल के टाइम पर ATP और NADH और NADH2 का फॉर्मेशन हुआ, उनसे उनको ऑक्सीडाइज करा करके उनसे एनर्जी लेना, ATP का फॉर्मेशन एनर्जी बनाना ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम कहलाता है. तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस वन. थैंक यू.